کیا گلا ہے آپ کو مسٹر سینئر سے؟ دو چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، ایک تو ہم سے پرفیکشن اور دوسرا ہمیں دیا کچھ نہیں جاتا. اس پروفیشن میں پہلے لرننگ ہے اور اس کے بعد ارننگ ہے. کوئی بھی بات ہمیں کرنا الاؤ نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو بی ان آور لمٹس. میں جتنا مرضی نکما ہوں اور میرا جونیئر جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہے، کلائنٹ کی سیٹسفیکشن اس بات پر ہے کہ میں جا کے کیس آرگو کروں. لارڈز کے اس پروفیشن وکالت کا ایک فیز یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنا لا اسکول کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے وکالت کے گر سیکھنے کے لیے کسی سینئر کے چیمبر میں اس کو جوائن کرنا پڑتا ہے ایز اے جونیئر. لیکن یہ جو فیز ہے اس پہ بڑی شکایات ہیں. جونیئرز یہ کہتے ہیں کہ سینئرز ہمیں پراپر اکاموڈیٹ نہیں کرتے، ہمیں سکھاتے نہیں، پے نہیں کرتے. بے شمار گلے ہیں اور سینئرز کے گلے بھی ٹورڈ جونیئرز دے آر لاٹ آف دوز ایکچولی. یہ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ نہیں ہے. یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے جو ہمیں ہر روز سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے. اپنی اس ڈیبیٹ کو ہم نے جسٹ ون کے پلیٹ فارم پہ لے آئے اور وی ہیو انٹروڈیوس دس نیو پروگرام جس کا نام ہے مسٹر سینئر اور مسٹر جونیئر. آج میرے ساتھ مسٹر سینئر ہیں سپریم کورٹ کے سینئر اٹارنی نفیر ملک صاحب. نفیر صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو الماس. اور میرے ساتھ مسٹر جونیئر ہیں عمیر جاوید. عمیر تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. عمیر رائٹ اوے کیا گلا ہے آپ کو مسٹر سینئر سے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس وقت ہم کالج سے پاس آؤٹ کرتے ہیں وی ہیو ہائر ڈریمس ٹو اچیو سم تھنگ ان آور لائفس. سر جب اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا. ہم بالکل کام کرتے ہیں، اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور سر دو چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، ایک تو ہم سے پرفیکشن اور دوسرا ہمیں دیا کچھ نہیں جاتا. لرننگ فیز میں ہاؤ کین وی اچیو پرفیکشن، اور سر بغیر وداؤٹ لائیولیہڈ ہاؤ کین سم ون انویسٹ ان سم تھنگ جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو. سر یہ تو بڑا گلا ہے کہ 3 سال پیسے بھی دیتے رہتے ہیں، 15 سال پڑھا بھی ہوتا ہے، 16 سال، اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں آپ پھر پیسے نہیں دیتے. الماس تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل کانگریچولیشن ٹو اسٹارٹ اے نیو پروگرام. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ون اسٹیپ ون ٹی وی آلویز اہیڈ. عمیر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. آئی ول بی دی لاسٹ پرسن آن ارتھ جو کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. کوئی سینئر اچھا سینئر آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا. لیکن میری بھی ایک بات سن لیں گے آپ. 16 یا 17 سال آپ ایک سکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کو پے کرتے ہیں. جب آپ ایک لا فرم یا سینئر کو جوائن کرتے ہیں تو آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اصولی طور پر کیا آپ کو نہیں پے کرنا چاہیے کہ میں یہاں ایک اکیڈمی ہے اور یہاں اس سے میں سیکھنے آیا ہوں؟ لیکن سر کوئی ایک فل سٹاپ تو کسی جگہ پہ آنا چاہیے نا. پلیز لیٹ می فنش. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اپنی لا فرم کو باہر نکال رہا ہوں. میری لا فرم میں ایوری ون از پیڈ. لیکن میں اوور آل سارے سینئرز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایڈوائس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پروفیشن میں پہلے لرننگ ہے اور اس کے بعد ارننگ ہے. آپ لوگ بھول جاتے ہو کہ کیا ہم ماں کے پیٹ سے سینئر بن کے آئے تھے؟ آج آپ کو ہماری بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر نظر آتے ہیں. جو سالہ سال سے کچہری کی 2-2 انچ کی مٹی ہمارے بوٹوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی وہ نہیں نظر آتی. دوسری بات یہ ہے کہ لرننگ کے ڈفرنٹ پروسیس ہیں، ڈفرنٹ میتھڈولوجی ہے. آپ جوائن کرتے ہیں لرننگ بائی آبزرویشن کے لیے. اب اصول ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط پوائنٹ آف ویو ہے، صحیح پوائنٹ آف ویو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وکلا میں سے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جونیئر لائر کا تو لا فرم میں کام ہی نہیں. کیوں کہتے ہیں وہ؟ ایک لا فرم میں کام ہے وکیل صاحب کا، یا کام ہے اسٹینو کا، یا کام ہے کلرک کا جس کو ہم منشی کہتے ہیں. اب اگر جونیئر آ رہا ہے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کو لا فرم میں اور کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ میں اور کلائنٹ کے بریف یا لفافے یا کاغذات تک ایکسیس مل گئی. لسن میر سینئر وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، سینئر جب جونیئر کو رکھتا ہے جونیئر یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر اچھا ہے وہ اس کو لاس پہنچا کے جائے گا کیونکہ جب اپنا دفتر بنا لے گا تو اس کے سارے کلائنٹ لے جائے گا. برا ہے تب اس کو لاس پہنچائے گا کہ وہ کیس ہار کے آ جائے گا. دونوں صورتوں میں سینئر از باؤنڈ ٹو لوز. رائٹ. سو بلیم گیم از اے ڈیفیٹڈ اسٹریٹجی. پرنسپلی یو آر رائٹ. لیکن آپ بھی تو دیکھو کتنا ٹائم دیتے ہو. 7:30 بجے ہم کہتے ہیں کہ پہنچ جانا. گیو می 1 منٹ. ہم کہتے ہیں 7:30 بجے کوٹ لگتی ہے پہنچ جانا، 8 بجے پہنچ جانا.
वो 8:45 बजे पहुंचता है, बेल बिफोर रेस्ट खारिज होगी होती है, वो कहता है रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। क्लाइंट ने फीस हमें दी हुई है, क्लाइंट हमारे सर के ऊपर है। सो काइंडली इतना सिर्फ गिला ना करें, और सिर्फ बार रूम में बैठ के कॉफी पी के सीनियर्स को बुरा ना कहें, जरा पॉजिटिव होके भी तो सामने। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं, ये जूनियर को कितना अरसा जूनियर रहना चाहिए? मैं लेट मी अ डेविल्स एडवोकेट आल्सो, ये कितना अरसा आप उसको अपने जरा हाथ के नीचे रखेंगे? अलमास, यू आर प्लेइंग डुअल रोल, सीनियर एज वेल एज जूनियर, इट डिपेंड्स। राइट। स्टैट्यूटरी पीरियड या कानून तो कहता है 6 मंथ्स के बाद लाइसेंस, ठीक है। बट अब ये जूनियर पे डिपेंड करता है कि उसने 2 साल में सीखना है या 2 महीने में सीखना है या 20 साल में भी नहीं सीखना। राइट राइट। सो इंटायरली अप टू यू, मैन टू मैन, स्किल्स का बात है, आपने कितना अरसा रहना है। बट यूजुअली मैं ये समझता हूं कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 साल, एक साल तो प्रोसीजर समझने में लग जाता है, लेकिन 3 या 4 साल आपको कम अज कम रहना चाहिए। राइट राइट। उमेर, इनका तो कोई मूड नहीं है पैसे देने का, और क्या गिला है आपका? सर और उसके बाद एक ये कि रिसर्च वर्क, ड्राफ्टिंग का काम सर हम सब लोग करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू सर्कमस्टेन और टू टेल देम एवरी, कोई भी बात हमें करना अलाउ नहीं होती। वी हैव टू बी इन आवर लिमिट्स में रह के सर किस तरह से सीखा जा सकता है। मैं ये भी अपने सीनियर कौंसल से पूछना चाहूंगा कि वो इस पे भी हमें थोड़ा सा गाइड करें कि अगर हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, हम लाइवलीहुड की डिमांड एक साइड पर रख देते हैं, अगर सर हम सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और जहां तक बात सर बड़े बड़े ऑफिसेस की है, बड़े बड़े दफ्तर की है, सर इन्हीं चीजों को देख के जूनियर्स प्रोफेशन में आते हैं। अगर वो 3-4 साल सर अपने पास से इन्वेस्ट करके काम करेगा, देन हाउ विल ही अचीव समथिंग इन हिज कमिंग लाइफ? सर आपने किसी स्टेज पे मुझे ये कहा था कि हम कम्युनिटी सर्विस बड़ी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। सर खिदमत के तौर पे इन्हें को थोड़ा सा दे दिया करें। मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले एग्री कर चुका हूं, देना चाहिए। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत फूड फॉर कंसर्न है। आपके सवाल को अगर मैं सही तरह से समझ सका हूं तो वो ये है कि हम आपको परमिट नहीं करते कि आप केस को आर्गू करें या जरा करें। राइट। नो मेयर, लिसन, इट इज चॉइस ऑफ द क्लाइंट, नॉट मी। मेरा क्लाइंट अगर आके मुझे 1 मिलियन फीस देके गया, मैं जूनियर को भिजवाऊंगा, वो कहता है जी अगर मैंने जूनियर को करना था तो मैं 5,000 देके उस जूनियर को ना कर लेता। बेसिकली क्लाइंट के आप वकील हैं, जूनियर नहीं। क्लाइंट ने मुझे पे किया है, क्लाइंट सेटिस्फाइड, मैं जितना मर्जी न कमाऊं और मेरा जूनियर जितना मर्जी कॉम्पिटेंट है, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इस बात पर है कि मैं जाके केस आर्गू करूं, वो सेटिस्फाई ही नहीं है कि जूनियर जाए। सो यहां वही मैंने आपको पहले कहा है कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ आप भी समझते हैं कि जी जरा भी आप कर रहे हैं, बहस भी आप कर रहे हैं, एविडेंस भी आप कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग भी आप कर लें, तो वो क्लाइंट मुझे क्या कहा, आपने किस बात की फीस ली? मिस्टर सीनियर, उनको सिखाने के लिए इन प्रोसीजर में से गुजारना भी तो है आपने। इनको साथ एसोसिएट रखते हैं, बिल्कुल शर्त रखते हैं, और सारे सीनियर्स जो हैं वो जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, केस की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, वो यही तरीकेकार है। इसके अलावा अगर आप एक नया तरीकेकार लाना चाह रहे हैं तो वो डूएबल नहीं है। और लाइफ में हमेशा डूएबल टारगेट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है। और आपसे भी समझते हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये पहले दिन से ही सीनियर थे, ये सारे के सारे वहां से निकले हुए हैं, उस प्रोसेस से, उन जंगलात की खाक खा के जहां से आप गुजर रहे हो। या किसी स्माइलिंग फेस के साथ इसको एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि कितना खूबसूरत फ्यूचर वो आपका मुंतजिर है, सिर्फ गले नहीं करो। राइट। मिस्टर जूनियर, आपका अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन सर इनसे ये है कि गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों के अंदर सर सिविल कोड के हालात से शायद जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं दे नो बेटर देन अस। जैसे सर ने कहा कि 2-2 इंच मिट्टी इनके शूज पे रहती थी और ये वहां पर ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट हियर। सर आखिर जूनियर्स अब आने वाली गर्मी में क्या करें जब सिविल कोर्ट में हमें बिठा दिया जाता है, जैसे सर ने खुद कहा कि आर्ग्यूमेंट्स भी हम करना चाहते हैं, प्लेंट भी हम बनाना चाहते हैं, वी डू एवरीथिंग, बट इन रिटर्न सर हमें उस तरह से वो चीजें नहीं दी जा रही जो हमें मिलनी चाहिए। लाइक सर यंग डॉक्टर्स जब अपनी फील्ड से व्हेन दे पास आउट दे गेट समथिंग इन रिटर्न। हम गर्मी में वहां बैठ के काम भी करते हैं और एट द एंड सर रात को आकर ये एक्सपेक्ट करना कि जूनियर आएगा और वो सब कुछ बिल्कुल ठीक करके आएगा। सर जूनियर्स के लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं जब तक हमें थोड़ा सा लेवरेज नहीं दिया जाएगा। और सोशली पीपल डोंट एक्नॉलेज जूनियर लॉयर्स, लोग यही अज्यूम करते हैं कि भाई ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक अरसे के बाद आपको मिलना शुरू होगा। तो मेरा ख्याल है वक्त के साथ चीजों में फर्क आना चाहिए। इस प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए या इसके प्राउड के लिए हमें इसके ऊपर सर जरूर काम करना चाहिए। सर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे फर्दर बढ़ाते हुए, कोई बार काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि इन जूनियर्स को पैटर्नेज इनकी की जाए, इनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग
बच्चे डिस्करेज होकर प्रोफेशन छोड़ जाते हैं. मैंने देखा बच्चों को कि वो पढ़ाने के लिए चले गए, बाकी प्रोफेशंस पे चले गए, टू कीप देम इन द प्रोफेशन एक्चुअली जहां पे उन्होंने बहुत मेहनत की हुई. डू यू थिंक कि सीनियर्स से हट के बार काउंसिल और बाकी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहाँ तक इन बात का ताल्लुक है, कौन डिनाई कर सकता है कि सिविल कोर्ट में गर्मी होती है? पहली बात ये है कि मैं तो वहाँ एसी लगवा नहीं सकता, ठीक है? वो गर्मी है तो उस गर्मी से ही निकलना है सबने. जो इम्पोर्टेंट बात है, मेरा बड़ा अरसे से टीचिंग के साथ ताल्लुक है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ. मेरी अपनी थ्योरी है और मैंने इस पर बहुत गौर किया और मैंने बड़े दिल से इस पर रिसर्च की है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, 3 साल हमारे पास रहते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार मेहनत करो, और वो दिल से कहते हैं कि मेहनत करेंगे. लेकिन उसके बाद जब मैं 6 महीने या साल बाद किसी से पूछता हूँ, कहता जी एक चैम्बर, एक लॉ फर्म अटेंड की थी, छोड़ दी, वहाँ से मिलनी कुछ मिला, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. सर मैंने बहुत मेहनत की है. अब बेसिकली मेहनत की डेफिनेशन में फ़र्क है. अगर मैं आपको बात कम्युनिकेट कर सकूं या आपके हवाले से मैं अपने सारे यंग लॉयर्स को एडवाइस कर सकूं, बीए तक आपने या एलएलबी तक आपने सुना होता है कि मेहनत करने से मुराद ये है कि अब टीवी नहीं देखना, फेसबुक नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलनी और किताबें खोल लेनी है और नोट्स बनाने हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, ये वो, और ये मेहनत है. इस प्रोफेशन में तो मेहनत की डेफिनेशन ही और है. इस प्रोफेशन में शाम को जिम खाना क्लब जाके कॉफी पीनी है, 4 नए दोस्तों को आपने विजिटिंग कार्ड देने हैं, वो मेहनत का हिस्सा है. नेटवर्किंग होगी तो क्लाइंट आएगा. पब्लिक रिलेशन. एक बात, इस में आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी होने चाहिए, क्लाइंट्स के साथ भी होने चाहिए, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी होने चाहिए, ठीक है? ये भी मेहनत है. शाम को आप गोल्फ खेलने जाते हैं, आप रॉयल पाम में जाके जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं और अपने साथ वाले को आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, ये भी मेहनत है. इसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने वेकेशंस पर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के किसी लॉयर से मिलते हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, वो पाकिस्तान केसेस आपको दे देता है, अमेरिका केसेस उसको देते हैं, ये भी मेहनत है. सो मेहनत की डेफिनेशन को तो प्लीज आइडेंटिफाई कर लें. आप अपने जरा खुद सोचिए कि आप गिले करके रहे हैं कि सिविल कोर्ट है जी, जून जुलाई आ रही है जी, वहां गर्मी बहुत है. भाई वहां वो गर्मी थी, वो मेरे लिए भी थी, वो सबके लिए थी, वो सबके लिए होगी, लेकिन गर्मी से निकलना है. अल्लाह मियां ने, लिसन, अल्लाह मियां ने टेन्योर लिखे हुए हैं. इतना अरसा आपने साइकिल पर रहना, इतना अरसा मोटरसाइकिल पर, इतना अरसा पुरानी कार पर, इतना अरसा लेटेस्ट मॉडल कार पर, ठीक है? अगर आपका वो टेन्योर ही पूरा नहीं होगा कि वो साइकिल वाला, तो आप फिर कार तक पहुंचोगे. अपना टेन्योर तो पूरा कर लो. वो प्रीमेच्योर चीजें होंगी. अच्छा, मिस्टर सीनियर, मिस्टर जूनियर से आपके भी तो गिले हैं, कोई एक गिला हमें सुना दें जरा. मुझे पहली बात है कोई गिला नहीं है, मैं गिला कर ही नहीं सकता हूं. लेकिन एक बात है, ये प्रोफेशन में जो क्लाइंट्स होते हैं, या उनकी जिंदगी मौत का मसला होता है, या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब होता है. मैं किसी जूनियर को कहता हूं यार आप कल लॉ फर्म में नहीं आए, कह रहा सर कल केस कोई नहीं था. मैं कहता हूं कि यार जब मुजरिम छुट्टी नहीं करता, छुट्टी वाले दिन और ईद वाले दिन भी क्राइम करता है, जब थाना छुट्टी वाले दिन और 9वीं 10वीं मुहर्रम को खुला होता है, तो इसका मतलब है वकील को भी खुला होना चाहिए. ठीक है? वो कहते नहीं कल छुट्टी थी दादा सरवार की, मैं तो घर में सोया रहा. मुझे गिला नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट तो आप हों. जब आप प्रेजेंट ही नहीं है, सीनियर आपको क्या सिखाएगा? आपको घर जाके सिखाएगा, आपको घर से बुला के लाएगा, आपको पहले घर से वो पिक करे, उसके बाद घर तक ड्रॉप करे और फिर आपको बताए कि जनाब एक नया केस आने वाला है. ये गिले नहीं है, ये एडवाइजेज हैं. अलमास आई करेक्ट प्लीज, गिले नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे तो गिला होता ही नहीं है. मेरी एडवाइस है कि जरा इस तरह से चीजों को देखो, इस तरह से जरा देखो, रोशन पहनूस से देखो, जरा पॉजिटिव होके देखो. अच्छा मुझे जरा पूछें, थॉट के साथ देखो, फिर देखो क्या होता है. मिस्टर जूनियर, ये क्या छुट्टियां मारते हैं आप? ये छोड़ दें पुरानी स्कूलों की आते, कॉलेजेस की आते, प्रैक्टिकल लाइफ है, सीखने आपने क्या हर जगह छुट्टियां करने का क्या तुक बनता है? वहां पे भी तो आप गपशप ही लगाते हैं बाकी कोर्ट में और चैम्बर में बैठ के. सर उस तरह से छुट्टी करना तो हमारा मकसद नहीं होता, बट समटाइम्स कुछ कमिटमेंट्स की वजह से, कुछ चीजों की वजह से हमसे प्रोफेशन से बढ़ के भी कमिटमेंट है. बट सर वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ही हो सकती हैं. लाइक सीनियर इज इन हाई कोर्ट, द जूनियर वाज इन सिविल कोर्ट, उसको कुछ वक्त लगा आने में. कहने का मकसद ये, whoever comes to the profession he wants to do something.
اگر آج سینئرز کو ہم سے کوئی گلا نہیں ہے, ہم بھی ان سے بہت خوش ہیں کیونکہ یہ ہمارے استاد ہیں, اس قوم کے معمار ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. لیکن ہمارا صرف ایک ہی ایشو ہے, وہ یہ کہ ہمیں سوشلی تھوڑا سا اس امبریلا کے نیچے اس طرح سے رکھا جائے کہ ہم بھی لوگوں کو ود پراؤڈ کہہ سکیں کہ وی آر لائرز. ہم ایک ایسے طبقے سے بلانگ نہیں کرتے جو اس ملک میں اتنا اچھا, جس کو لوگ فائنینشلی بہت ویک سمجھتے ہیں. تو لوگوں تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ینگ ہو یا سینئر ہو یا جونیئر ہو, they are in a good position to face their society. Right. Thank you very much. اور آخری بات مسٹر سینئر آپ سے, آخری بات. جی جی. عمیر, you must give 24 hours a day to this profession, if not more. Let me repeat, you must give 24 hours a day to this profession, if not more. And practice wakalat is a jealous mistress. Right. Jealous mistress. ٹھیک ہے. Thank you so much. Thank you, Almaz. Stay blessed and good luck. Thank you very much, Mr. Senior, and thank you very much, Mr. Junior. یہ جو انہوں نے بات کی کہ 24 hours a day دینا چاہیے, یہ ان if not more یہ ان وکلا کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی. شادی والے جو ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. We had a great debate. ایک ایڈوائز کروں, شاید کام آ جائے. غلطی سے بھی جو آپ کو پتا نا کافی کام کرنا پڑتا ہے رات دیر تک کلائنٹس کے ساتھ, صبح 7 بجے سے لے کے, نہ بیوی کی برتھ ڈے یاد رہتی ہے نہ بچوں کی یاد رہتی ہے, اپنی بھولی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو فیملی لاز کی بک ہے, اس کو غلطی سے بھی کبھی گھر نہ لے کے جانا شادی کے بعد. جس دن آپ کی وائف کو پتا لگ گیا طلاق کے لیے صرف 15 روپے کی کورٹ فیس لگتی ہے, that is going to be the worst day of your life. Thank you so much. We had a great debate, and this debate is going to continue. We request and we invite all the seniors and all the juniors to come together at this platform. اپنی باتیں کریں, بیکاز آپ کی باتوں سے ہم سب بہت سیکھیں گے, اور آپ کی باتیں جو شاید آپس میں نہیں کر سکتے شاید اس پلیٹ فارم میں آپ کر سکیں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو دی بیٹرمنٹ آف دا پروفیشن. تھینک یو ویری مچ.